Hi dear students, welcome back to the chemistry class. As in the last class we have discussed about Faraday's first law, second law, some quantitative aspects as well as numericals on first law and second law. So now I am going to discuss about product of electrolysis. Product of electrolysis. So already you know about electrolysis. What is meant by electrolysis? Because we have discussed some quantitative aspects of electrolysis, where electrolysis is nothing but it is a process of decomposition of an electrolyte by passing the electric current, right? So here I have taken electrolytic tank, that is electrolytic cell, in which two electrodes are dipped and these two electrodes are connected to the batteries. Two electrodes are there and these two are connected by means of a battery. Plus minus battery se connect kiya hai. One is anode and other one is cathode. One is anode and other one is cathode. Left side oxidation, left side जो है anode है, right side जो है cathode है. In the electrolysis process, two types of reactions are taking place. The one at anode, the reaction is called oxidation reaction, and reduction reaction takes place at cathode. Oxidation at anode, reduction at cathode. Now, as you know that two types of electrodes are used. One is inert electrode. Inert electrode means which do not react with the electrolyte solution, particularly ions of electrolyte. For example, A plus B minus ions are there. The electrode which do not react with the ions of electrolytic solution, and the second one is the electrode which is reactive, means which take part in the redox reaction. So therefore, ये जो product है, product of electrolysis are different products. Products of electrolysis is depends upon, ये किसके ऊपर dependent रहता है? Number one, the nature of electrode which is used in the electrolysis process, उसके ऊपर dependent है. Number two, the nature of material or electrolytic solution, उसके ऊपर भी dependent है. And third one, the different tendencies of the ions which undergo oxidation and reduction. That means the third point is SRP values, standard reduction potential values के ऊपर dependent है. ठीक है? तो ये जो products of electrolysis, it depends upon three factors. And as we know that the ion with higher SRP, जिसका SRP values ज्यादा है, वो reduction हो. Higher the SRP, undergo reduction, and other one undergo oxidation, and which gives rise to two different products. One product at anode and second product at cathode. And one more point here we need to note. In some of the electrolytic solutions, even though the reaction is feasible, but kinetically it is slow. Kinetically means क्या है? Some of the ions, usually plus or minus ions. यहाँ पर ions है, the ions are moving to the opposite electrodes. Here, cations move towards cathode, anions moves towards anode. And here, electrodes are act as source of electrons or sink of electrons. Source or sink of electron. Suppose if anode का reaction हम consider किया तो the negatively charged ions which moves towards anode and it gets discharged. Cations when it moves towards the cathode and it reaches the cathode and it gets discharged. दोनों discharge हुआ, neutral atoms बन गए यहाँ पर, and further it undergoing reactions to give another product. So here primary change and secondary change, as we have discussed in the quantitative analysis of electrolysis. Here, if the ion, this B minus, have a tendency to undergo oxidation or reduction, anode पर हो रहा है, therefore oxidation हो रहा है. So here, if the speed of ions, if it is considered in the electrolytic solution, even though it is electrochemically feasible, but kinetically if it is slow, अगर kinetically उसका speed slow रहा तो
some additional voltage is required in order to carry the reaction. That extra voltage what we are supplying in order to take place this reaction is known as over voltage. So because of this over voltage, the product may be different. In one case we are going to study that. Now let us consider some examples to explain the product of electrolysis. Here we are dealing with the products of electrolysis of molten sodium chloride, molten NaCl, aqueous NaCl. First one molten NaCl, aqueous NaCl. Next molten lead bromide, copper sulfates, electrolysis of copper sulfate solution using platinum electrode, this is inert electrode, or electrolysis of copper sulfate using copper electrode, electrolysis of water, electrolysis of sulfuric acid, etc. we are going to study. Now let us consider first one, molten NaCl. मोल्टन NaCl सॉल्यूशंस लेके इलेक्ट्रोलाइज किया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलाइज किया तो प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा आपको? ओवरऑल रिएक्शन क्या है? 3 रिएक्शन लिखना पड़ेगा. रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन. हो गया, इतना ही कॉन्सेप्ट है. तो देखिए फर्स्ट वन, नंबर 1. फर्स्ट वन क्या है? मोल्टन NaCl कंसिडर किया मैं. मोल्टन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस आई हैव टेकन. मोल्टन NaCl. तो अब आपको पता है मोल्टन NaCl सॉल्यूशन में मोल्टन NaCl है, लिक्विड है. तो ये इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन है इसमें? As you know that molten NaCl means which containing Na plus and Cl minus. 2 ions are there. तो ये टैंक में, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में मैंने क्या किया? मोल्टन NaCl सॉल्यूशन यहां पर डाला एंड 2 electrodes are dipped. It is connected to the battery. Current is passed through this solution. So what happens? As usual, as you know that these 2 ions, one is cation and other is anion. Cations, that is sodium ions which moves towards cathode. Sodium ion which moves towards cathode, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज आयन्स आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड. जब ये कैथोड के पास आएगा, it takes 1 electron from the electrode and it undergo discharge. हुआ एक रिएक्शन. सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है, anions which moves towards anode and which give up 1 electron to the electrode and this also undergoing discharge. कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं, कंफ्यूज होने का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, पर सिंपल है. मोल्टन NaCl में 2 आयन है, जिसका पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से डिफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन अंडरगो रिएक्शन. और जिसका पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा. तो देखिए यहां पर एट एनोड कौन सा रिएक्शन होते हैं एनोड पे? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. Na प्लस में तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए नहीं है, तो ओनली Cl माइनस में कंसिडर Cl माइनस. सो दिस Cl माइनस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन which gives rise to Cl plus 1 electron, 1/2 Cl2. Chlorine gas is liberated. ये हुआ एनोड का रिएक्शन. सिमिलरली अब कैथोड का रिएक्शन क्या है? एट कैथोड कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरा आयन कौन सा है? Na plus. Na plus when it gains 1 electron, this gives rise to sodium. डिपॉजिट हो गया. तो हुआ 2 रिएक्शन. ओवरऑल इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर? when सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस दैट इज करंट पास किया तो ये मोल्टन है. मोल्टन NaCl है, इसको पास किया तो 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं आपको. एक सोडियम डिपोजिशन हो रहा है और एक दूसरा
क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है, क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ। एंड ये कहां पर मिलेगा आपको, सॉलिड डिपोजिशन हो रही है, ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा और ये एनोड पे क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया तो ये दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गए। अब और एक दूसरा एग्जांपल कंसिडर करेंगे, यहां पर आपको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। नंबर 2, ये मोल्टन की जगह इफ वी यूज एक्वेस NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करना, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, यहां पर प्रोडक्ट क्या आएगा, तो वो देखिए। अब मुझे ये बताइए मोल्टन NaCl में कौन सा आयन्स है। NaCl स्प्लिट अप हुआ तो दो आयन मिल रहे आपको, Na प्लस एंड Cl माइनस, ऑफ कोर्स Na प्लस एंड Cl माइनस, ये दो आयन है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। दो आयन है तो यही प्रोडक्ट आना चाहिए और दूसरा ऑप्शन ही नहीं। लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर, एक्वेस बोले तो वाटर में कितना आयन है, दो आयन है। कौन सा है, H प्लस एज वेल एज OH माइनस, H प्लस OH माइनस। अब ये सोल्यूशन में एक्वेस NaCl सोल्यूशन मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में लिया, तो यहां पर दो प्लस आयन है और दो माइनस आयन है। कौन सा प्लस आयन है, प्लस आयन सोडियम प्लस भी है और हाइड्रोजन भी है, दो आयन्स आते, टू आयन्स आते हैं। वेयरएज नेगेटिव का कौन सा है, Cl माइनस OH माइनस। नाउ हियर देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन दीज टू आयन। Na प्लस को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, H प्लस को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे, कैथोड में वहां पर इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। रिडक्शन होने के लिए देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, इन दोनों में अब कंपटीशन स्टार्ट होगा। रिडक्शन होने के लिए दो आयन से दोनों में कंपटीशन होता है, क्योंकि दोनों these two have a tendency to undergo reduction। तो यहां पर क्या होगा, at anode, okay, फर्स्ट एनोड का बात करेंगे। at एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दोनों ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन हमको एक प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा है वो। There is a competition between these two ions to undergo oxidation. One is Cl. If Cl minus undergoing oxidation, then the product is half Cl2 plus 1 electron. This is one reaction. Suppose if OH minus ions undergoing oxidation, अगर OH minus oxidize हुआ तो product क्या आएगा, product is 2 molecules of OH minus if you consider, then this gives rise to, I mean you can take 4 molecules, this gives rise to H2O plus O2 plus 4 electron, देखो 4H plus 2 plus 2 4 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीडेशन होने का चांसेस है, दो है यहाँ पर। तो दिस इज फर्स्ट वन एंड ये सेकेंड रिएक्शन का है, ऑक्सीडेशन है। नाउ सिमिलरली यू कैन कंसिडर एट कैथोड में भी दो आयन्स है। एनोड बोले तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होने के लिए भी दो आयन्स है, उन दोनों के बीच में कंपटीशन है। फर्स्ट वन Na plus if it gives 1 electron, this gives rise to sodium deposit हुआ। Second one H plus electron gives rise to hydrogen gas liberate हो गया, hydrogen gas is liberated। तो यहाँ पर भी और दो रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन हमको यहाँ पर ओनली टू रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शन। बट इन दिस केस there are two reactions are there at each electrode. Now we need to select any one, we need to select only one, select करेंगे यहाँ पर either सोडियम और क्लोरीन लेना पड़ेगा। क्लोरीन भी है, OH माइनस भी है, Na प्लस H प्लस। आपको तो एक वैल्यू पता है because we are regularly used, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये SHE में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यूज क्या लिया था हमने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज 0, इट इज स्टैंडर्ड, वी हैव टेकन एज 0। तो इसका SRP वैल्यूज है, ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस
इज टेकन एज 0.00 वोल्ट। ये 0 है, हाइड्रोजन का मैंने 0 कंसिडर किया था ना। और एक दूसरा कौन सा है, सोडियम है। सोडियम का एसआरपी वैल्यू है, सोडियम का एसआरपी वैल्यू है -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। नाउ टू वैल्यूज आपको पता है, दो वो वैल्यूज देके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहां पर कौन सा रिएक्शन फीजिबल है। यस, प्रिडिक्ट विच वन इज फीजिबल अमॉन्ग दीज टू, कौन सा है देखिए, बोलिए यहां पर दो आया, दो रिएक्शन में which reaction is feasible at cathode? Of course, you are going to select this because जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है वो रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन का 0 है, वेरा सोडियम का कितना है, माइनस है, इसका वैल्यू कम है, तो हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो ये रिएक्शन फीजिबल है। दिस रिएक्शन इज फीजिबल, दिस रिएक्शन इज फीजिबल। Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Na, इसका एसआरपी वैल्यू कम है तो ये रिडक्शन नहीं होगा, तो दिस वन इज हैपन, सो हाइड्रोजन अंडरगोइंग रिडक्शन। एक पॉइंट क्लियर हो। अब दूसरा पॉइंट, ये दोनों में Cl एंड OH माइनस आयंस में एसआरपी वैल्यूज क्या है। एसआरपी वैल्यूज देखिए, इसका एसआरपी वैल्यूज दिया है यहां पर, द एसआरपी वैल्यूज ऑफ Cl इज 1.36, इसका वैल्यूज है 1.36 वोल्ट, whereas the SRP values of water is 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट। क्लोरीन, ये रिएक्शन का एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिया है। नाउ कैन यू सेलेक्ट विच रिएक्शन इज फीजिबल इन दीज टू, क्लोरीन एंड OH में कौन सा रिएक्शन पॉसिबल। 100% यू कैन सेलेक्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्या है वो पॉइंट नोट कीजिए। जिसका एसआरपी वैल्यूज ज्यादा है वो रिडक्शन होना चाहिए, और जो कम है वो ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन होने के लिए एसआरपी वैल्यूज कम रहना चाहिए, करेक्ट। तो ये दोनों में इसका वैल्यूज कम है 1.23, देयरफॉर आवर एक्सपेक्टेशन इज दिस अंडरगोस ऑक्सीडेशन, करेक्ट है। लेकिन ये नहीं होते यहां पर, देखिए ये खास बात है, ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, पर्टिकुलरली एक्वेस में ये क्यों नहीं होते यहां पर, क्योंकि ये दोनों आयन से, ये दोनों में इसका तो एसआरपी वैल्यूज कम है, जिसका एसआरपी कम है वो आपको ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ये दोनों में इसका वैल्यू ज्यादा है, फिर भी वो ऑक्सीडाइज है, यही ऑक्सीडेशन हो रहा है बोल के मैं बोल रहा हूं, बिकॉज दिस डू नॉट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्यों? द रीजन इज, ये देखिए यहां पर दोनों आयन है Cl माइनस OH माइनस, दीज टू आयन्स विच मूविंग टुवर्ड्स एनोड, दोनों एनोड की तरफ भाग रहे हैं वहां पर इन ऑर्डर टू गिव द इलेक्ट्रॉन। सो दोनों के बीच में कंपटीशन है। अगर ये वैल्यूज हमने देख लिया तो क्या है, OH माइनस फास्ट जाके ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकली फीजिबल है, बट काइनेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल, फीजिबल नहीं है। काइनेटिकली बोलते तो क्या है, उसका स्पीड, ये जो OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन एंड Cl माइनस, दोनों आयन ये जो एनोड के पास अगर ऐसा आ रहे तो Cl माइनस आयन कम्स फास्टर देन OH माइनस, सो दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसके लिए हमको थोड़ा एडिशनल वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू कैरी दिस रिएक्शन। जो हमने पास किया वो जितना पोटेंशियल हमने यहां पर अप्लाई किया, वहां पर ये रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन, दैट वोल्टेज इज नोन एज ओवर वोल्टेज। तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन इज फीजिबल। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन देखिए यहां पर, ओवरऑल रिएक्शन इज Cl का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.36, OH का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.23, जिसका कम में ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन हमको ये हो रहा है यहां पर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, नोट कीजिए, NaCl प्लस वाटर एक्वेस है, इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोडक्ट इज, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, Cl2, कैथोड पे हाइड्रोजन, तो दिस गिव्स रेस टू
half H2 gas is liberated plus half Cl2 gas is liberated plus इसके साथ साथ अब ये H2 एंड Cl2 गैस लिबरेट हो गया, तो अभी सोल्यूशन में क्या बचा है? यहाँ पर ये लिबरेट हो गया रिएक्शन हो, तो सोल्यूशन में OH माइनस ऐसा ही है, Na प्लस है, तो Na प्लस एंड OH प्लस NaOH प्लस NaOH प्लस NaOH, तो ये हुआ आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मोल्टन NaCl, ये मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो Na सोडियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। यही केस अगर हम एक्वेस यूज किया तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड सोल्यूशन में NaOH ऐसा ही रहता है। दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous and molten sodium chloride solution। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट अगर प्रेडिक्ट करना है, वन आयन अंडरगो ऑक्सीडेशन, सेकंड अंडरगो रिडक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एंड कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा आयन रिड्यूस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है? एसआर पे। लेकिन ऐसा एक्सेप्शन केस कहां पर आएगा? हमको जो वैल्यू से थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एक्वेस NaCl के केस में ऐसा है और एक सल्फ्यूरिक एसिड के केस पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। एट हाई कंसंट्रेशन एंड एट लो कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये दोनों नोट कीजिए। द नेक्स्ट वन इज लेड ब्रोमाइड, और बाकी का सिंपल है, डायरेक्टली आप नोट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। द नेक्स्ट वन इज मोल्टन लेड ब्रोमाइड, molten lead bromide, right? Third one, product of electrolysis में third one, molten lead bromide। अब आप ही प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर। मोल्टन बोले तो यहाँ पर क्या है? एक Pb+2 आयन है एंड Br- है, तो 3 रिएक्शन लिख सकते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो पूरा सेम है। तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? एट एनोड बोले तो कंपल्सरी ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कौन सा होगा? प्लस या माइनस? माइनस, तो Br-, तो यहां पर जो है ब्रोमाइड आयन Br- which undergo oxidation, so this gives rise to half Br2, bromine gas is liberated, plus loss of electron, ऑक्सीडेशन हो गया। एंड वन मोर, एट कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होते हैं? कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन, ओनली वन आयन इज देयर, प्लस आयन कौन सा है? लेड Pb+2 which gains 2 electron and this gives rise to lead is deposited। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? ओवरऑल रिएक्शन में PbBr2 लेड ब्रोमाइड, ये मोल्टन है, ये लेड ब्रोमाइड को मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो अपॉन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट दिस गिव्स राइज टू सॉलिड लेड, इट गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड पे सॉलिड आएगा एंड ब्रोमीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड पे ये गैस लिबरेट होगा। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो ये दोनों प्रोडक्ट आएगा। Identify which product is liberated at anode or cathode, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछते हैं यहाँ पर। ओके, थर्ड वन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सा है? कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर सल्फेट का 2 रिएक्शंस करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सा? कॉपर सल्फेट CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लैटिनम और गोल्ड इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया तो क्या होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। और एक कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड किया तो क्या हुआ? और एक प्लैटिनम और गोल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया तो प्रोडक्ट क्या आएगा? उसके ऊपर क्या होता है? सो फर्स्ट देखिए यहाँ पर, अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोलते हैं यहाँ पर एक्वेस सॉल्यूशंस लेते हैं हम, एक्वेस सॉल्यूशंस लिया तो आयंस कितना है यहाँ पर आपके पास? सो यू हैव इन दिस केस
Cu plus 2 ions and SO4 ions of electrolytic solution. ये दो आयन है. Aqueous बोले तो H plus and OH minus. Now you have 4 ions. 4 आयन है आपके पास. अब फटाफट रिएक्शन लिखिए. यहाँ पर रिडक्शन पे कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? कैथोड. कैथोड. कैथोड मीन्स रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन में कौन सा रिडक्शन होता है? One is Cu plus 2 electron gives rise to copper. It undergoing reduction. इसके SRP वैल्यूज आपको पता है. E naught value is 0.34 volt. एंड दूसरा H plus electron gives rise to hydrogen gas, लिबरेट हो जाएगा यहाँ पर. इसका SRP वैल्यूज भी आपको पता है 0 वोल्ट. और इन दोनों में आप सेलेक्ट कर सकते हैं which reaction is feasible. Of course जिसका वैल्यू SRP वैल्यूज ज्यादा है वो रिएक्शन feasible होगा, दूसरा नहीं. सेकेंड, आज एनोड. एनोड पे कौन सा रिएक्शन है? एनोड पे ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन दो आयन से यहाँ पर. वन इज SO4 2 माइनस आयन्स एंड अदर वन इज OH माइनस आयन. तो हियर OH माइनस आयन का SRP वैल्यूज कम है कंपेयर टू SO4 2 माइनस. सो देयरफॉर OH माइनस आयन्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. OH माइनस आयन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन. OH माइनस आयन विच अंडरगो ऑक्सीडेशन. और एक दूसरा कौन सा है? सल्फेट आयन. सल्फेट आयन्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. दो आयन्स में यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ तो उनको प्रोडक्ट में H2O प्लस ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 माइनस लिया तो. और सल्फेट में क्या आएगा? 2 मॉलिक्यूल्स S2OH 2 माइनस प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये दोनों है. तो अगर सल्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड में वो बात डिस्कस करते हैं हम, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. तो यहां पर दिस रिएक्शन इज फीजिबल फॉर OH माइनस which gives rise to oxygen. Oxygen gas is liberated. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ यहाँ पर? The overall reaction is copper sulfate, aqueous copper sulfate undergoing electrolysis. Electrolysis. This gives rise to one is deposition of copper at cathode. Cathode पे copper deposit होगा plus liberation of oxygen gas. Liberation of oxygen gas. Only aqueous layer. The oxygen gas is liberated at anode. Oxygen gas is liberated at anode. Oxygen gas liberated हुआ. ओवरऑल पूरा का पूरा रिएक्शन कैसे लिखते हैं आप? Cu plus 2 है यहाँ पर. Cu plus 2 और यहाँ पर क्या है? 4 OH minus. This gives rise to Cu plus 2 से क्या मिला आपको? कॉपर डिपॉजिट हुआ. और यहां से 2H2O plus O2. 2H2O plus O2 बैलेंस नहीं हुआ. देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. तो 2 2. तो ये हुआ आपका बैलेंस रिएक्शन. बैलेंस रिएक्शन भी लिख लिया मैंने. मुझे मेन प्रोडक्ट चाहिए तो मेन प्रोडक्ट ये रिएक्शंस लिख लिया. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड. और एक कौन सा है? सेम इलेक्ट्रोलाइसिस. अगर यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेके इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यही है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. कॉपर इलेक्ट्रोड ही यूज किया तो क्या होगा? So this is used in the purification of copper, extraction of metal and purification में कॉपर प्यूरिफाई करने के लिए ये यूज करता है. क्योंकि यहां पर जो है दो वन ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर. इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं यहां पर और दूसरा प्योर कॉपर को कैथोड बनाते हैं. तो यहां पर क्या हुआ? एट एनोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन होते हैं. ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. ये क्या है? इम्प्योर है. जो इम्प्योर कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ. सेकेंड एट कैथोड पे क्या हुआ? एट कैथोड रिडक्शन हो रहे. एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन. रिडक्शन हुआ तो Cu2 plus from solution which gives 2 electrons and copper is deposited. This one is pure. So impure से pure तक आ गया यहाँ पर. तो रिएक्शन क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ तो क्या होते हैं रिएक्शंस? कॉपर
impure copper gives rise to, impure copper से लेकर हमको क्या आ रहा है, प्योर कॉपर आ रहा है, प्योर कॉपर, सॉलिड सॉलिड, दोनों सॉलिड ही है, इम्प्योर टू प्योर, क्योंकि दोनों अगर ऐड किया तो Cu प्लस टू Cu प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल हो जाएगा, आपको इम्प्योर टू प्योर मिलेगा। तो ये रिएक्शंस को आपको, अब दो है हमारे पास, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन द सिमिलर वे यू कैन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों का भी देख लेंगे अभी। तो नेक्स्ट वन, नोट ऑन द नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड को दोनों भी चेक करेंगे अभी। वाटर H2O, as you know that pure water is a bad conductor, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा HCl और H2SO4 अल्कली और एसिड हम ऐड करते हैं, उसको थोड़ा एसिड और बेस ऐड करने के बाद it becomes good conductor of electricity and which can undergo electrolysis। अब यहां पर H प्लस भी है, OH माइनस है, H प्लस OH माइनस। प्योर वाटर को थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो H प्लस प्लस 2H प्लस, सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर ऐड किया तो हमारे पास टोटल 4 आयन्स है। तो 4 आयन में एट कैथोड ओनली 1 रिएक्शन ही होगा, क्योंकि दोनों H प्लस है, H plus which gives 1 electron gives rise to hydrogen, hydrogen gas liberated at cathode, एक रिएक्शन तो फिक्स हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या है, OH एंड सल्फेट, दो आयन्स है, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो हियर बोथ एट एनोड, एनोड पे 2 रिएक्शंस हो गए, आपको ऑक्सीडेशन होने में 2 रिएक्शंस है, ये कैथोड पे कौन सा रिएक्शन है, ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन के लिए 4OH माइनस विच अंडरगॉन, तो 2 भी ले सकते हैं आप डायरेक्टली, 2, इवन वी कैन यूज H2O, वाटर भी ले सकते हैं यहां पर, तो इट गिव्स रेस टू 2H2O plus O2 plus 4 electrons are liberated, this gives rise to, and one more कौन सा है, SO4 2 minus, 2 molecules of SO4 2 minus क्या मिलेगा, S2OH 2 minus plus 2 electron। अगर सल्फेट का कंसंट्रेशन अगर कुछ ज्यादा है तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा, नहीं तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। तो देयरफॉर द ओवरऑल रिएक्शन क्या है, 8th या 9th क्लास में भी होगा आपके पास। अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस गिव्स राइज टू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। 2 moles of H2 plus 1 mole of O2 is liberated, oxygen and hydrogen, hydrogen is liberated at cathode whereas oxygen is liberated at anode। ये आपका रिएक्शन होगा ओवरऑल, and this is found to be 2:1, electrolysis of water gives rise to 2:1 moles of hydrogen and oxygen gases are liberated by using this। लास्ट वन आप कर सकते हैं, यस 7th वन, H2SO4, H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, क्या हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 यहां पर भी हम डायरेक्ट ओनली 2 आयन्स है, H प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन्स, वाटर में लिया तो H प्लस एंड OH माइनस, दो आयन, 4 आयन्स है। ऑफ कोर्स 1 रिएक्शन तो कॉमन है, एट कैथोड पे ओनली एक ही रिएक्शन है, कंपल्सरी हाइड्रोजन लिबरेट होगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स राइज टू हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, एक रिएक्शन फिक्स है, हो गया। अब दूसरा, ये दोनों में फॉर डाइल्यूट एसिड रहा तो, डाइल्यूट H2SO4 रहा तो एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 रहा तो, डाइल्यूट के केस पे डाइल्यूट रहा तो 4OH minus, this undergoing oxidation gives rise to oxygen gas is liberated with the loss of electron। ये dilute रहा तो ये reaction होगा, OH minus undergoing oxidation। If it is concentrated, SO4 2 minus ions undergoing oxidation to give thiosulfate S2OH 2 minus ions with the liberation of 2 electrons। तो ये रिएक्शंस होगा आपका।
So therefore the product क्या है आपको, when sulfuric acid undergo electrolysis, when it undergoing electrolysis, one is fixed, hydrogen gas is liberated at cathode. अब एनोड का प्रोडक्ट क्या है, at anode if the acid is dilute, if it is, हम अगर dilute यूज किया तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ। अगर ये कंसंट्रेटेड रहा तो, इफ इट इज कंसंट्रेटेड, एनोड के जगह S2OH2 माइनस आयंस आर लिबरेटेड। ये हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ कंसेप्ट? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सिंपल है, एक एनोड रिएक्शन, एक कैथोड रिएक्शन, ओवरऑल इक्वेशंस प्रिडिक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर ऐसा कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको, एंड यहाँ पर प्रेफरेबली थोड़ा एक्वेस NaCl का याद रखिए, एक्वेस एज वेल एज कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में नोट कीजिए, ठीक है? यस, प्लीज नोट दिस। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बैटरीज, फ्यूल सेल्स, करोजन। अभी 3 बचा है, we'll continue. Okay, thank you.